Hello friends, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture, I am going to talk about alternating current through parallel circuit. We will see what will happen in parallel AC circuit. What is that? Okay, so you will understand what is the concept of admittance, conductance, susceptance. You will get the formulas. Okay, so you will understand all these things. Now I am going to discuss about the parallel AC circuit. You can say these are the impedance Z1, Z2, Z3 are connected in parallel across a supply of V volts. You can see here these three are in parallel, impedance Z1, Z2, Z3 like that. So when you connect the supply here V volts, so current will flow I, and here voltage across here will be same V, voltage across here will be same V, voltage across here will be same V. In parallel circuit, voltages will be same across here and here. Voltage will be same, right? So in parallel circuit, voltages will be same, but current will be divided. It depends on voltage. Voltage तो same है. Depends on the value of Z1, Z2, Z3. More the Z, less the current. So current will be I1 plus I2 plus I3. ये current हो जाएंगे I1, I2, I3 through these branches. So I can write I equal to what? Total current supply I equal to I1 plus I2 plus I3. So what is the value of I1? I equal to क्या होता है? V upon Z1. I2 इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन यहाँ का वोल्टेज कितना है? V अपॉन Z2 हियर. यहाँ वोल्टेज कितना है? सेम V अपॉन Z3 इक्वल टू I3. So V अपॉन Z3. So if you take V common, so you will get 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3. और I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? V अपॉन Z इक्वलेंट. तो V will be cancelled. You will get 1 upon Z equal to what? 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3. So this is the formula. 1 upon Z equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2. Clear? So अगर आपको ये निकालना है equivalent value, तो it is really very difficult to find 1 upon Z equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3. 2 के लिए ठीक है, बट 3 के लिए डिफिकल्ट है, 4 के लिए डिफिकल्ट है. तो हम एक काम करते हैं, आई विल टेक 1 अपॉन Z इक्वल टू Y कॉल्ड एज एडमिटेंस. Y इक्वल टू एक वैल्यू लेते हैं, Y इक्वल टू 1 अपॉन Z. रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एज एडमिटेंस. एडमिटेंस कैपिटल Y. सो Y इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन Z equal to what? I upon V. This is I upon V. V upon I equal to Z होता है ना, I upon V, right? So I equal to what? V into Y. So I equal to क्या होगा? V into 1 upon Z1 plus 1 upon Z2. Anyway, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? Y1 plus Y2 plus Y3. Anyway, so Y equal to what? 1 upon Z equal to क्या होगा? 1 upon Z equal to Y equal to what? 1 upon Z1 that is Y1 plus 1 upon Z2 equal to Y2 plus 1 upon Z3 equal to Y3. So in this way we will solve it, right? Anyway, जैसे Z के दो कंपोनेंट थे, और कौन कौन से कंपोनेंट थे? रियल कंपोनेंट R. Z इक्वल टू दो कंपोनेंट थे ना, Z इक्वल टू व्हाट? R प्लस R माइनस JX. अभी ये प्लस कब आता था? एक्सएल के लिए, आरएल सर्किट के लिए. आरसी सर्किट में क्या आता था? R माइनस JXC. तो प्लस माइनस JX. Similarly, Y that is admittance will also have two component. एक को बोलते हैं कंडक्टेंस कैपिटल G एंड दूसरे को बोलते हैं ससेप्टेंस B प्लस माइनस JB. So Y will also have two component, conductance G and susceptance B. So we can say Y will also have two components, right? So Y equal to क्या लिखेंगे? G प्लस माइनस JB, right? So अभी वो अदरवाइज इसको डिफिकल्ट है सॉल्व करना, तो हम इसको क्या करेंगे? पहले 1 अपॉन Z इक्वल टू Y करके ऐसा कर लेंगे.
क्लियर? तो मैं इसके आगे की स्लाइड में प्रेजेंट किया है वो डिस्कस। Admittance. Okay, we know impedance Z has two components. Impedance Z has two components, R and X. Similarly, admittance Y has also two components. Y has also two components, horizontal component and is known as G, conductance, and vertical component known as B, susceptance. Okay, so similar to the Z, Y has also two components, right? G and B. So I am taking one example, RL series circuit. RL series circuit अगर है, R and XL है, right? तो Z इक्वल टू क्या होता है RL series circuit में? Z इक्वल टू R प्लस J XL. एग्जाम्पल लिया मैंने RL series circuit का, R प्लस J XL. तो Y इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन Z. 1 अपॉन Z क्या है? R प्लस J XL. तो ये 1 upon R plus Jx, right? Okay. So can I multiply and divide by R minus Jx? कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर सकते हैं। तो क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा R माइनस Jx न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है? A प्लस बी, A माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर. ओके, R माइनस J, यहाँ पर क्या आएगा? जस्ट वेट, इक्वल टू क्या आएगा? R माइनस J न्यूमरेटर में R माइनस J, और ये हम यहाँ A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर क्या होगा? R स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? J स्क्वायर XL स्क्वायर. J स्क्वायर XL स्क्वायर. J स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस XL स्क्वायर, राइट ना? फिर से मैं बताता हूँ, R माइनस Jx तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है? A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? माइनस J स्क्वायर XL स्क्वायर, और J स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो एक कंपोनेंट ये आएगा R अपान R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ क्या आएगा? प्लस, सॉरी ये माइनस, माइनस ये माइनस, ये वाला माइनस, ये J XL अपॉन R स्क्वायर है इधर. प्लीज, समथिंग इज रॉन्ग. यहाँ R स्क्वायर है और यहाँ प्लस XL नहीं है, इधर J नहीं है, सॉरी प्लीज, समथिंग इज रॉन्ग. यही लिखा है ना, R अपान R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. ओके, माइनस J X अपान XL अपान R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. दिस टर्म R अपान R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज नोन एज G, कंडक्टेंस. माइनस J और x अपान R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको बोलते P. सो G इक्वल टू व्हाट? R अपान R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. और B क्या है? XL अपान R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. ये तो कॉमन ले लिया ये टर्म. So G will conductance and susceptance. The unit of admittance, Y की यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट, susceptance की यूनिट क्या है? मो. ओम का उल्टा, ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो, मो उल्टा, ओम का उल्टा, राइट? मो. क्लियर? नाउ इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, आरएल सर्किट में यह जे टर्म क्या थी? प्लस थी ना? जे टर्म क्या थी? प्लस. इंडक्टिव रिएक्टेंस आरएल सर में ये प्लस है, बट यहाँ पर माइनस आ रहा है, देखो. तो आप लिख सकते हैं, फॉर आरएल सर्किट द ससेप्टेंस विल बी नेगेटिव. यू कैन सी, राइट? यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस आ रहा है. और यहाँ आरसी सर्किट में यहाँ माइनस रहता. आरसी सर्किट में क्या रहता? जेड इक्वल टू व्हाट? आर माइनस जे एक्सी. तो यहाँ लिखते हैं 1 अपान आर माइनस जे एक्सी. तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर प्लस से हो जाता, तो यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ प्लस आ जाता. तो फॉर आरसी सर्किट वर्टिकल कंपोनेंट विल बी नेगेटिव,
but susceptance will be positive, उल्टा होता है. Clear? And Y has two component, कौन सी? G plus minus JB. So Y has also. So similar to the impedance, Z has two component R and X. Similarly, Y will also have two component G and B. For RL circuit, B will be negative. For RC circuit, B will be positive. So be careful about it. Okay. And these are the definition I'm going to discuss in the next slide. Okay. Next slide, I'm going to discuss the definition and then numerical. Definition. Admittance is what? Admittance क्या होता है? Admittance क्या होता है? It is the reciprocal of what? Impedance. It is the reciprocal of impedance, right? Called as admittance. Why? As we know, impedance Z has two components, R and X. Similarly, admittance Y has also two components. Horizontal component is called as conductance G and vertical component called as susceptance B. इसकी यूनिट क्या है? Mho. Conductance मतलब G. It is defined as the horizontal component of Y. Right? ये यहीं से लिखा है. It is horizontal component of admittance Y. Its unit is mho and represented by this formula. G equal to what? R upon R square plus X square. Similarly, susceptance. It is defined as the vertical component of Y. Right? ना B है ना? It is defined as the vertical component of Y. Its unit is mho. It is represented by B and इसकी वैल्यू क्या है? B equal to X upon R square plus X square. It is negative for RL circuit, right? और RC सर्किट में क्या होगा? It is positive. RC सर्किट में Z क्या होता है? R minus JXC, बट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा G plus JB. Clear? So these are the simple definition जो काम किया है, इसके पहले डिस्कस किया था, वो ही लिख दिया है, right? Now I am going to discuss some numerical based on this. Two numerical I am going to discuss. Okay, so here one equation, one problem है given. एक coil मतलब RL coil होती है, a resistance of 50 ohm and inductance of 0.02 Henry. 50 ohm and 0.02 sorry Henry है, 0.02 Henry is connected in parallel with 25 microfarad. Connect, ये दोनों सीरीज में रहेंगे. Coil है मतलब एक ही रहता है, और connected in parallel with 25 microfarad capacitor across 200 volt 50 hertz supply. Find the current in the coil and capacitor. इसका मतलब क्या निकालना है आपको? I1 current through the coil and I2 current through the capacitor. Also find the total current taken from the supply, मतलब I भी निकालना है. I मतलब क्या होता है? I1 plus I2 का वेक्टर सम की अर्थमेटिक सम, वेक्टर सम, क्योंकि ये कंपोनेंट करंट और ये कंपोनेंट करंट सेम फेज में नहीं है, तो वेक्टर सम. पावर फैक्टर, टोटल पावर कंज्यूम, एसेट्रा एसेट्रा विल डिस्कस. सो पहला हमको अगर ये निकालना है तो एक्सएल निकालना पड़ेगा. एक्सएल इक्वल टू क्या होता है भाई? ये L1 है, सॉरी L1. सो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ एल. 2 पाई एफ कितना दिया? 50 और एल दिया 0.02 हेनरी, दैट इज 6.28 ओम. एक्सी क्या होगा? एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी. 1/2 पाई एफ सी इतना दिया है, यू विल गेट 127 माइक्रोफेराड सॉरी ओम. I1 क्या होगा? V अपॉन V, तो V अपॉन Z1, V अपॉन Z1. V कितना है? 200. आप देंगे 0 ले लें एज ए रेफरेंस, यू कैन टेक V एज ए रेफरेंस. तो करंट दिस Z1 कितना है? 50 RL ना, 50 प्लस J 6.28 V अपॉन Z1. इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो V मींस 200 आप देंगे 0, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिवाइड होगा, इतना आएगा. एंगल क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस हो जाएगा. दिस इज I1. करंट थ्रू कैपेसिटर मतलब I2. I2 इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन Z2, V अपॉन Z2. V कितना है? 200 आप देंगे 0 है, 200 आप देंगे 0 क्यों लिया? आई एम टेकिंग V एज ए रेफरेंस. गिवन क्वांटिटी वी विल टेक एज ए रेफरेंस, याद रखना. वोल्टेज दिया है. वेक्टर डायग्राम में क्या होता है? वोल्टेजेस एंड करंट्स.
करंट दिया है क्या? नहीं दिया। फिर क्या दिया है? वोल्टेज। सो वी विल टेक वोल्टेज एज ए रेफरेंस। अगर करंट दिया होता तो हम करंट को रेफरेंस लेते, वोल्टेज दिया है। सो वी रेफरेंस वोल्टेज को लिया। Z2 कितना है? इसको लिख सकते हैं क्या Z2 को ऐसा, Z2 इक्वल टू सेकेंड सर्किट है 0 माइनस जे XT कितना है 127, ऐसा लिख सकते हैं हम, प्योरली कैपेसिटिव है ना। सो इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट ये 127.32 वोल्ट ऑफ द एंगल -90 आएगा। कन्वर्ट करके देखो कैलकुलेटर, यू विल गेट मैग्नीट्यूड विल डिवाइड इतना आएगा और एंगल डिवाइड होगा तो 0 -90 प्लस 90 हो जाएगा। दिस इज आंसर I2। I क्या होता है इन दोनों का सम, अर्थमेटिक की वेक्टर सम। सो I1 प्लस I2 का वेक्टर सम है। I1 इतना है 3.97 ऑफ द एंगल दिस और प्लस I2 इतना है। अभी इसको सम करना है तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर यूनिट नंबर 2। कौन से फॉर्म में सम करते हैं? रेक्टेंगल फॉर्म में। तो पहले इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करोगे इतना आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा, दोनों का सम करोगे तो रियल पार्ट सेपरेट सम होंगे इतना आएगा, इमेजिनरी पार्ट ये माइनस है ये प्लस है तो ये इतना हो जाएगा। और इसके बाद इसको अगेन इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। दिस इज आंसर। सो जस्ट यू हैव टू सी इट कैसे करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यूज द कैलकुलेटर, यू विल गेट क्लियर। अभी आपको V क्या रेफरेंस लिया था आपने? V रेफरेंस लिया था ऐसा जो भी था 200 वोल्ट। I कितना आया है? I आया कितना 4.0 ऑफ द एंगल प्लस 15, ये I आया है कितना एंगल से लीड कर रहा है 15 डिग्री से। I दिस इज द एंगल, ये एंगल है 15.33 डिग्री से लीड कर रहा है। क्लियर। अभी बोल रहा ओवरऑल पावर फैक्टर, तो वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? फाई। तो पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस ऑफ फाई। दिस इज फाई। सो कॉस ऑफ फाई, कॉस ऑफ 15.33 डिग्री क्या आएगा? ये 0.96। अभी करंट लीड कर रहा है कि लैग? लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा है तो नेचर ऑफ पावर फैक्टर विल बी लीडिंग। करंट लैग कर रहा होता तो पावर फैक्टर लैगिंग होता। बी केयरफुल अबाउट टोटल पावर कंज्यूम। टोटल पावर कंज्यूम क्या होता है? वी आई कॉस फाइव, वी कितना है 200, टोटल आई कितना है 4.0, ये है टोटल आई। cos of 5, cos of 15.33, you will get this is the answer। क्लियर। ये आंसर यहां से भी निकाल सकते हो। एक अच्छा बताओ, पावर कंजम्पशन यहाँ क्या होता है? 0। पावर कंजम्पशन यहाँ क्या होता है? 0। तो कहना इसे पावर कंजम्पशन P इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू 50 I स्क्वायर R। यस, I1 स्क्वायर जो भी I1 निकाला हमने ना, यस 3.97 का स्क्वायर ओनली मैग्नीट्यूड इंटू 50, सेम आंसर आता आपका। ओके, सेम आंसर आता। ओके one more question, sorry, ये one, okay one, this is the second question I'm going to talk। A parallel circuit consists of two branches A and B। दो ब्रांच है A, this is A, this is B। two branches A and B in parallel। parallel circuit है मतलब parallel में A और B। A branch has resistance of 10 ohm and inductance of 0.1 Henry। B branch has resistance of 20 ohm and capacity of 100 microfarad। तो आप चाहो तो ये रीड करने के साथ साथ यू कैन ड्रा द फिगर आल्सो, फिगर ड्रा कर सकते हो आप, राइट। द सर्किट इज कनेक्टेड टू ए सिंगल फेज सप्लाई ऑफ
250 वोल्ट 50 हर्ट्ज 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई आपने अप्लाई किया है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज एंगल ऑफ द करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई, ड्रा द फेजर डायग्राम एक्सेट्रा। तो पहला काम क्या करना है, एक्सएल निकालना है आपको। एक्सएल इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ कितना है, 50 हर्ट्ज दिया है, एल दिया है 0.1 31.4। एक्सी भी निकाल लो। एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। 1/2 पाई एफ कितना है 50, सी कितना है 100 माइक्रोफैराड। यू विल गेट 31.8। Z1 क्या होगा, R प्लस जे एक्सएल 10, इसका 10 प्लस जे 31.4। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपने इससे। Z2 क्या होगा, 20 माइनस जे दिस, 20 माइनस जे एक्सी। एक्सी कितना निकाला था आपने 31, तो इसको कन्वर्ट कर दो पोलर फॉर्म में, आ जाएगा आपका Z1 Z2 आ गया। यू विल गेट I1 इक्वल टू V अपॉन Z1। V कितना है 250, आप देंगे 0 लिख सकते रेफरेंस, अपॉन Z1 ये है। सो मैग्नीट्यूड विल डिवाइड, इतना आएगा, एंगल विल बी सब्ट्रैक्टेड -72 हो जाएगा। I2 कितना होगा, V अपॉन Z2। वोल्टेज सेम है पैरेलल में, V अपॉन Z2। V कितना है 250, आप देंगे 0, और Z2 कितना है, ये Z2 कहाँ गया, ये। So magnitude will divide और angle will be subtracted. So 0 minus 57 plus 57 जाएगा। क्लियर। अभी पूछ रहा टोटल करंट। टोटल करंट क्या होता है, I1 प्लस I2, वेक्टर सम की अरिथमेटिक सम, वेक्टर सम। सो I1 प्लस I2, सो सम ये है I1 प्लस I2 का। I1 और I2 का सम करना है तो कौन से फॉर्म में करते हैं, रेक्टेंगल में। तो कन्वर्ट इनटू रेक्टेंगल, कन्वर्ट दिस इनटू रेक्टेंगल, रियल पार्ट सेपरेटेड करो, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट प्लस माइनस करो, यू विल गेट दिस। क्लियर। और उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो यू विल गेट दिस। फेज एंगल कितना है, वोल्टेज का एंगल कितना था आपका 0, करंट का एंगल कितना आया आपका -15। करंट लैग कर रहा है, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर है। सो फाई आ गया इतना। वेक्टर डायग्राम ड्रा करना है तो क्या रेफरेंस लिया था आपने, 250, आप देंगे 0 लिया है ना। इसका मतलब वोल्टेज आपने क्या लिया है, रेफरेंस 250 वोल्ट रेफरेंस। I1 कितना है, ये I1 है, कितना 7.5, आप देंगे -72। तो I1 ये है 7.5, आप देंगे -72 यहां से। क्लियर। I2 कितना है, I2 कितना है 6.5 प्लस 57, ये I2 है, देखो 6.5 प्लस 57, I2 कहाँ है, ये प्लस। और टोटल I कितना है, I कहाँ है, ये I कितना है 6.0, आप देंगे माइनस। सो I कितना है 6.0, ये आप देंगे माइनस है ना, -15 मतलब इतना। दिस इज द वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम में ओनली मैग्नीट्यूड लेना है और फेज एंगल, राइट। सो आई एम रबिंग इट। Sorry. This is the assignment. Define admittance, conductance and susceptance. Define करना है। For RL circuit susceptance will be negative. For RC circuit susceptance will be positive, like that. Assignment हो गया। Okay. Thank you very much for listening me carefully. Okay.